Hello everyone, welcome to this amazing session of how to score 80 plus marks in SCMP. And hey, this is CA Pragnesh Kanabar. I am senior audit faculty and not the faculty of SCMPE. In fact, in my final CA exams, I scored the least marks in SCMP, and that was only 51 marks. That was the least of all the 8 papers. So I am not the one going to give you the guidance. Otherwise, सब लोग फटाफट लॉग आउट कर देंगे, बोला इससे SCMP का गाइडेंस नहीं चाहिए हमें. All right. So without wasting time, let me introduce, as you are seeing on your screen, let me introduce CA Monish Kanabar. CA Monish Kanabar, all India rank 9 in CA final, and he has himself scored 80 plus marks, 81 to be specific. Monish, yes? Monish sir? Yes. Yes. I'm little, sometimes I may address him as Monish, but he's great in SCMP. I call him Monish because yes, fortunately, I've had the chance of coaching him, and he was an amazing person even as a student, and he has scored all India rank 9 and 81 marks in costing. So it is my honor to bring him in front of you, and he will give you all the strategy, whatever he has in his mind, how he ensured the score of 81, and he's going to share everything with you today. All right. Now you may be thinking that Pragnesh Kanabar and Monish Kanabar, so Kanabar common, so this seems to be some kind of family affair. But Monish, are you and me related in any manner? No. All right. ये वो कपूर खान वाला केस हो गया, where we have the same surname, right? So the only relationship that we shared earlier was a teacher-student relationship, and now the relationship that we share is I purely admire him for his love, passion, and dedication towards SCMP subject at CA final level. All right. So our session will be divided into some parts. मैं clearly बता देता हूँ. Our session will be divided into some parts. First, CA Monish Kanabar sir will explain broadly SCMP का syllabus division क्या है, and subject वो chapter wise और concept wise weightage क्या होता है ICAI के papers में, and then study strategy क्या होना चाहिए. So first, what is SCMP and उनका weightage क्या है, and second, study strategy, what is suggested from him. Then how he can help you to score marks. He will be also telling about his books and products, but ये कोई सेशन उसके लिए इंटेंडेड नहीं है. अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो. तो मार्केटिंग के लिए कोई सेशन नहीं है. फर्स्ट, व्हाट इज SCMP. सेकंड, क्या वेटेज है. थर्ड, क्या स्टडी स्ट्रेटेजी होना चाहिए. फोर्थ, हाउ CA Monish Kanabar sir's lectures and products can help you to score great marks. And then question answer round, whether you are subscribing for his course or not, irrespective of that, आपको मन में कोई भी डर है SCMP के लिए तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो. All right. And then if at all you want to subscribe for his course, then there will be some special discount which he has given for my students, and that we will let you know later on at the end of the session. So I will not waste time because students are bored of audit, Monish sir. So you can take it over from here, and he is going to present his session now. Yes, over to you, Monish sir. So finally, thank you so much sir. देखो, सबसे पहली चीज, सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बेसिक आइडिया इतना चाहिए कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसका ऑलरेडी SCMP का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. आई मीन क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं. सब लोग थम्स अप दो जिनका SCMP के क्लासेस हो चुके हैं एंड SCMP का सिलेबस जो भी है थोड़ा बहुत हो चुका है. प्लीज गिव मी अ थम्स अप. यस, around 20-25% students. Okay. All right, because I can see the data. I think even you can see from there. You are the co-host. और कितने स्टूडेंट्स हैं जिसको SCMP का कुछ भी आइडिया नहीं है. मतलब कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको SCMP का बिल्कुल आइडिया नहीं है, and they have just come for the first time to see it over here. All right. Yes, around another 30% of students maybe. Okay. All right. ठीक है, तो मतलब जो स्टूडेंट्स जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि व्हाट इज SCMP, वो स्टूडेंट्स के लिए एक बार बेसिक आइडिया दे देता हूं कि व्हाट इज SCMP एंड SCMP का सिलेबस एग्जैक्टली कैसे डिवाइडेड. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, SCMP का नाम कॉस्टिंग है, ये चीज दिमाग में से निकाल देना. अर्लियर कॉस्टिंग था, नाउ कॉस्टिंग है, बस स्ट्रेटेजिक कॉस्टिंग है. मतलब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है. तो देखो, हमारे सब्जेक्ट का नाम है SCMPE.
SCMPE मतलब उसके नाम में ही लिखा है कि वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट नंबर 1 है SCM और सेकेंड पार्ट है PE। PE मतलब यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है यहाँ पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो पार्ट नंबर 1 इज दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड पार्ट नंबर 2 इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। देखो एक कॉमन चीज ये है कि इंस्टीट्यूट जब भी कोई सिलेबस का नाम रखता है ना, ऐसे ही हवा में नाम नहीं होता। डेफिनेटली सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने ये सोचा होगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कौन कौन से चैप्टर्स जानने जरूरी है बिफोर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो फिर इंस्टीट्यूट ने सोचा कि भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए टोटल 11 चैप्टर्स तो कंपलसरी जानने जरूरी है। और तो वो 11 चैप्टर्स हमारे सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस किए और वो 11 चैप्टर्स का क्या कंटेंट था उसके मुताबिक सब्जेक्ट का नाम रखा है। तो टोटल 11 चैप्टर्स है। 11 चैप्टर्स को हम टोटल दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट 6 चैप्टर्स दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड सेकंड 5 चैप्टर्स दैट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। एंड एक मोनिश सर सॉरी, थोड़ा आप लाउड बोलिएगा, थोड़ा वॉइस में ये है, थोड़ा लाउड बोलिएगा। ओके। तो फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो भी है दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट 5 चैप्टर्स जो भी है दैट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सर मेजोरिटी मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि लोगों की गलती SCMP के अंदर कहाँ पे होती है कि लोग जनरली SCMP को कॉस्टिंग मानते हैं। अर्लियर ओल्ड कोर्स के अंदर जो भी कॉस्टिंग था ना, ओल्ड कोर्स के कॉस्टिंग के अंदर मेजोरिटी वेटेज सिर्फ दो चैप्टर का था दैट इज डिसीजन मेकिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो लोगों ने डिसीजन मेकिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट कर दिया। लोगों को लग रहा है कि मैंने कॉस्टिंग कंप्लीट कर दिया। सॉरी सर, आई वुड, मैं बीच बीच में थोड़ा बोलता रहूंगा बिकॉज स्टूडेंट से मुझे पता है एक चीज, ये जो मोनिश सर पॉइंट बता रहे हैं ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मोस्टली प्रोफेसर फैकल्टी भी और स्टूडेंट कम्युनिटी भी डिसीजन मेकिंग और वो प्राइसिंग डिसीजन के जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है उसमें ही बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं एंड देन वी फाइंड कि पेपर कुछ अलग आ रहा है। इज दैट द केस मोनिश सर? यस करेक्ट। मैं आपको चैप्टर वाइज भी दिखाऊंगा कि लोग सर फॉर एग्जांपल 300 आवर्स की कोई बैच है ना, 300 आवर्स की बैच में से 120 आवर्स जितना टाइम डिसीजन मेकिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर जाता है। और करेक्ट करेक्ट। मैं आपको वेटेज दिखाऊंगा कि एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है। श्योर मैंने श्योर। चैप्टर वाइज वेटेज प्रिपेयर किया है। यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज प्रिपेयर किया है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट वाइज प्रिपेयर किया है कि अभी तक इंस्टीट्यूट ने एग्जैक्टली क्या किया है और मतलब कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है और विद इन चैप्टर कौन से कॉन्सेप्ट का कितना वेटेज है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो डिसीजन मेकिंग चैप्टर इंस्टीट्यूट पूछ रहा है 20 मार्क्स के लिए और परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ये चैप्टर इंस्टीट्यूट पूछ रहा है 40 मार्क्स के लिए। ओ करेक्ट करेक्ट। पर अभी टाइम वाइज एलोकेशन देखे ना सर तो मेजोरिटी लोग डिसीजन मेकिंग ही कर रहे हैं और उसके मतलब उसके पीछे का भी क्लियर कट रीजन ये है कि ओल्ड कोर्स जो था ना, ओल्ड कोर्स के अंदर ये दो चैप्टर का ही वेटेज था, डिसीजन मेकिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। करेक्ट। ओल्ड कोर्स की PM प्रैक्टिस मैन्युअल जो भी है उसमें से 50% पेज ये दो चैप्टर के थे, डिसीजन मेकिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो अपने जो भी, मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं पर जो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, ओल्ड कोर्स से जो पढ़ा रहे हैं, सो दे में गिव मोर टाइम टू डिसीजन मेकिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड स्टफ, ऑलराइट। और जो अपना न्यू जनरेशन पूरा जो SCMP का पेपर है, वो 20-30 मार्क्स वहां से है पर मेजॉरिटी इज फ्रॉम अदर टॉपिक्स। दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस यस, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू प्लीज। हाँ सर। और ओल्ड कोर्स के अंदर भी डिसीजन मेकिंग जो था और न्यू कोर्स का डिसीजन मेकिंग वो भी पूरा अलग है। मतलब ओल्ड कोर्स का जो डिसीजन मेकिंग था वहां पे इंस्टीट्यूट का ये फोकस था कि आप लेंथी सम्स कैसे सोल्व कर सकते हैं और कैलकुलेशन बेस्ड सम कैसे सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल भी वो फोकस नहीं है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ये चेक करना चाहती है कि आप अकाउंटेंट नहीं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने हैं, मतलब नंबर्स को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन तो सिंपल होगा, फिर वो कैलकुलेशन को ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की नजर से आप कैसे देख सकते हैं, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन, उसका एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं कि एक जगह पे नुकसान हुआ तो दूसरी जगह पे फायदा हुआ तो इसको चार्टर्ड अकाउंटिंग की तरह देख के आप डिसीजन कैसे लेंगे। सो अदरवाइज कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी बढ़ चुके हैं, यानी कि आपका एनालिटिकल कमेंट्स, ऑब्जर्वेशन वगैरह, ऑलराइट। ओल्ड कोर्स के अंदर तो ये था कि लॉस कैलकुलेट करो या तो बेनिफिट कैलकुलेट करो, तो वो तो अकाउंटेंट करके देगा, फिर रोल आएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का कि लॉस या तो बेनिफिट कैलकुलेट किया उसके बाद क्या, तो वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल है। एक बार मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि टोटल 11 चैप्टर्स जो भी है उसके अंदर इंस्टीट्यूट एग्जैक्टली एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट के तरह हमारे पास क्या एक्सपेक्ट कर। यस यस सर, प्लीज टेक योर टाइम। यस। तो देखो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक हुआ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, एक हुआ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। बेसिक आइडिया है इंस्टीट्यूट आपके पास ये एक्सपेक्ट कर रही है कि कॉस्ट कम करना है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करने का मतलब आपको समझ में आ चुका है, आप इंटरमीडिएट पास कर लिया है। तो देखो कॉस्ट
कम करना और स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट को कम करना, ये दोनों के बीच डिफरेंस होता है। और ये चीज आप भी मानेंगे कि स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट को मैनेज करने की जरूरत क्यों है। आज के जमाने में आप कोई भी चीज परचेज करेंगे, पर उसके अंदर थोड़ी सी भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, आप कभी भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। आज मैंने आपका सेशन लिया ना, सेशन के अंदर मैंने क्वालिटी प्रोवाइड नहीं की, दूसरी बार आप कहेंगे कि इसका सेशन मुझे अटेंड नहीं करना, क्योंकि इतने सारे सेशन अवेलेबल है। सिमिलरली कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, एक बार गलती से प्रोडक्ट परचेज हुआ, दूसरी बार क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, तो वहां पे आप मान लेंगे कि ये प्रोडक्ट नहीं खरीदना। आज के जमाने में काफी कॉम्पिटिटिव है और प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और जब भी प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए बिना प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करनी है, उसी को हम कहेंगे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। मतलब कॉस्ट मैनेज करना है, पर हवा में कॉस्ट को मैनेज नहीं करना, स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट को मैनेज करना है। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के कॉस्ट को मैनेज करना है। और स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होना जरूरी है। ट्रेडिशनली, सर, नॉट डिसरिस्पेक्टिंग योर ऑडिट, बट ट्रेडिशनली ऑडिट और इनकम टैक्स के ऊपर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का फोकस ज्यादा था। और अभी इंस्टीट्यूट की ये इच्छा है कि थोड़ा सा बिजनेस माइंड भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का होना चाहिए, कि भाई प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करनी है और स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट कैसे। So that is the whole syllabus of strategic cost management. How to reduce the cost without compromising on the quality of the product. कोई लेमैन भी पूछ रहा है, बाहर चलता है इंसान, की भाई स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब बता, तो कॉस्ट को हवा में मैनेज नहीं करना, स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट को मैनेज करना है। और स्ट्रेटेजिकली मैनेज करने का मतलब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए बिना। तो इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले तो ये बोला कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जानना जरूरी है। और उसके लिए पहले बोला कि भाई मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुझे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पता होना जरूरी है, पर पहले ये तो समझ ले कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो चैप्टर नंबर 1 है सर, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। फिर इंस्टीट्यूट ने बोला कि मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, कि भाई स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की जरूरत क्या है। तो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर फोकस क्वालिटी के ऊपर है। तो ये भी समझ लो कि मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ताकि आपको ये पता चलेगा कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, इसकी जरूरत क्या है। तो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है वो एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है वो एक्सप्लेन किया, फिर मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है वो एक्सप्लेन किया। अच्छा सर, ये जो चैप्टर्स आप बता रहे हो इसमें ज्यादा कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चंस है या मोर थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस है ये सारे चैप्टर? सर वो एनालिसिस भी मैंने प्रिपेयर किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके ओके। यहाँ पे भी मैंने वो एनालिसिस प्रिपेयर किया है कि थियोरेटिकल वेटेज कितना है और प्रैक्टिकल वेटेज कितना ओके है। ओके। और यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज भी बताया है कि फर्स्ट चैप्टर जो है प्योरली थियोरेटिकल है, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट वो भी है प्योरली थियोरेटिकल बेस्ड है। So sir, to make it more productive, can we this is just a suggestion from my side, can we show that जैसे जैसे आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, can we show them the weightage and क्या उसका मार्किंग रहा है, so that students can come to? हाँ करेक्ट, वो मार्किंग वाइज सर बेटर ये रहेगा कि हम अटेम्प्ट वाइज एनालिसिस करें। Yes as you say yes. एक बार मैं सिर्फ बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि कौन से चैप्टर का मतलब क्या है। और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये चीज हमें जाननी जरूरी है। करेक्ट। फिर है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिकली बात की, और मतलब अभी तक तो ये बैकग्राउंड दिया था कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए बिना कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया। फिर प्रैक्टिकली चैप्टर नंबर 3 के अंदर बात की लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, तो कुछ इनोवेटिव करके आप कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। एंड लीन सिस्टम मतलब ऐसी सिस्टम जिसका यूज होगा कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। एकदम टेक्निकल लैंग्वेज बोलूं तो लीन सिस्टम मतलब ऐसी सिस्टम जिसका यूज होता है वेस्ट को दूर करने के लिए, और अल्टीमेटली वेस्ट को दूर करेंगे तो कॉस्ट रिड्यूस हो ही जाएगी। और वेस्ट क्या होता है वो डिटेल में डिस्कशन वहां पे हुआ है। तो लीन सिस्टम मतलब ऐसी सिस्टम जिसका यूज होगा कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए या तो वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए। सिमिलरली चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, नाम ही क्या है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो कॉस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स चैप्टर नंबर 4 के अंदर दी। तो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 जो है वो प्रैक्टिकली बताएंगे कि भाई हम एक्चुअल में कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। फिर आएगा डिसीजन मेकिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन। डेफिनेटली कॉस्ट मैनेज करने के अलावा हमें डिसीजन कैसे लेना है वो भी पता होना जरूरी है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डिसीजन लेना भी आना चाहिए और कॉस्ट को रिड्यूस करना भी आना चाहिए। 5 अल्टरनेटिव होंगे, कौन सा डिसीजन लेना है वो डिसीजन मेकिंग सिखाएगा। प्राइसिंग डिसीजन के अंदर भी प्राइसिंग से रिलेटेड फैक्टर्स होंगे कि भाई प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है। प्राइस गलत हुई तो पूरा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल एप्पल के एयरपोर्ट्स थे और अभी बोट ने एयरपोर्ट्स लॉन्च किए, तो कोई बोट के एयरपोर्ट्स क्यों खरीदेगा? तो बोट की प्राइसिंग ऐसी है कि बोट के एयरपोर्ट्स खरीद लेगा। एप्पल का एयरपोर्ट्स 14,000 के मिलते हैं और इसके 1,000 रुपए में मिल जाए, तो उसने प्राइसिंग डिसीजन अप्लाई करके इस तरह से प्राइस सेट की कि उसका बिजनेस चल सकता है। तो ये चीज भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होनी जरूरी है। करेक्ट, मैं अमन गुप्ता को नहीं दिखाऊंगा ये लेक्चर।
हाँ I करेक्ट। will not show it to Aman Gupta. आपने एप्पल को You can go ahead. Yes, yes, go ahead. Yes. तो दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अभी बेसिक आइडिया मिल चुका है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या पता होना जरूरी है, और अभी ये भी समझ में आ चुका है कि क्या ओल्ड कोर्स था और क्या न्यू कोर्स है। ओल्ड कोर्स के अंदर एक ही चीज थी, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आप कितने अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। हाँ बराबर, और यहाँ मैंने पे ओल्ड क्या है कोर्स कि में एग्जाम पास किया है, तो वो सब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ही पूरा पेपर हाँ रहता था। करेक्ट। हाँ, गेन लॉस कैलकुलेट करो, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो, वो सब यहाँ पे उसका एनालिसिस होगा। तो पहले अकाउंटेंट था, अभी शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर। नेक्स्ट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के अंदर उसके नाम में लिखा है कि एग्जैक्टली क्या चीज का डिस्कशन होगा। कोई भी चीज का हमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है, रिलायंस का परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है, कोई कंपनी का, या तो विद इन दी रिलायंस कितने डिवीजन होंगे। तो मुकेश अंबानी को यह भी जानना है कि मेरे 50 डिवीजन है, तो उसमें से कौन से डिवीजन का कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, तो वो चीज भी हमें पता होना जरूरी है। तो दैट विल बी टॉट अंडर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। नेक्स्ट डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर फॉल होगा। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट का डिस्कशन होगा। एग्जैक्टली क्या होगा, तो एक डिवीजन में से जब भी दूसरे डिवीजन में कोई चीज ट्रांसफर होती है तो वहां पे क्या क्या इंप्लीकेशंस आएगी, वो सब चीज डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर डिस्कस होगी। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। यहाँ पे भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का डिस्कशन होगा। नाम क्या है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे थे, वहां पे क्या रहा था, एक ऑपरेटिंग इनकम होती है, एक इन्वेस्टिंग इनकम होती है और एक फाइनेंसिंग इनकम होती है। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग इनकम का एनालिसिस नहीं है, ऑपरेटिंग इनकम का एनालिसिस है, और वो भी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। यानी कि प्योरली बिजनेस को ऑपरेट करने से जो भी इनकम होती है उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग इनकम। तो अल्टीमेटली ऑपरेटिंग इनकम का अलग अलग तरीके से एनालिसिस किया ताकि अल्टीमेटली डिसीजन लेने में हेल्प हो। तो वो भी आप बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग इनकम का अलग अलग एनालिसिस किया, मतलब परफॉर्मेंस देखा। बजटरी कंट्रोल तो आप इंटरमीडिएट पे देख रहे थे, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे आप इंटरमीडिएट पे देख रहे थे। तो तो बजटरी कंक्लूजन कंट्रोल ये एंड है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो इंटरमीडिएट का था उस पर बिल्डअप हुआ है। हाँ हाँ करेक्ट। तो लोगों को लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा कॉस्टिंग है, पर हाँ, मैं डिसीजन मतलब मेकिंग YouTube में भी सब जगह पे जो देखता हूँ सारे प्रोफेसर्स डिसीजन मेकिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसके आजू बाजू ही लेक्चर्स काफी डिजाइन रहते हैं। मतलब सर वहां पे एक्सपर्टीज शायद ज्यादा है, क्योंकि पिछले 15 साल से वो कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हुआ है उस हिसाब से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और लास्ट में है चैप्टर नंबर 12 केस स्टडीज। आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो दे दिया होगा, मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सिखा तो दिया कि कैसे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट करना है, यहाँ पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिखा तो दिया, फिर एक्चुअल में आपके सामने सिनेरियो रखा होगा कि ये कंपनी है, ये इसका बिजनेस मॉडल है, कंपनी के सामने ये सारी प्रॉब्लम है, केस स्टडी प्रोवाइड कर दी होगी, और यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हमने सीखे हैं उसके मुताबिक आपको केस स्टडी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। ऑल राइट। तो इस तरह से एससीएमबी का पूरा सिलेबस है। अभी So सर ने that was आपको the एक, breakup of SCMP syllabus, SCM and PE. And the biggest takeaway from this is कि सब लोग डिसीजन मेकिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिर्फ ये दो के पीछे मत भागो, बाकी बहुत कुछ है इसके अंदर जो पूछा जाता है पेपर में। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। करेक्ट। अभी स्टूडेंट्स के दिमाग में नेक्स्ट डाउट ये आएगा कि एससीएमपी का सिलेबस तो समझ में आ चुका, अभी नेक्स्ट सबसे बड़ा डाउट ये है कि इसके अंदर थियोरेटिकल पोर्शन कितना है और प्रैक्टिकल पोर्शन कितना है। हाँ सर, ये क्योंकि डाउट सर क्लियर ही नहीं हो रहा है सर। इतना प्रॉब्लम, सब लोग थियरी कितना आएगा पेपर में और सम्स में कितना आएगा, उनको क्लियरली बता दो कि थियरी कितना, सम्स में कितना, क्या ट्रेंड रहा है। और मेजोरिटी मतलब ये है कि प्रैक्टिकल के ऊपर कंफर्ट होता है, थियरी के ऊपर कंफर्ट नहीं होता। और उसके अंदर भी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मुझे ये थियरी पता है, और एक्चुअल में उसको थियरी पता नहीं होती। मतलब वो क्या है कि इंस्टीट्यूट प्लेन वेनिला थियरी नहीं पूछता, स्टूडेंट्स क्या है कि मेमोरी टेक्निक लगा के जाते हैं कि भाई फॉर सो एंड सो एग्जांपल थियरी है, उसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज, तो बेनिफिट्स की ये मेमोरी टेक्निक है, डिसएडवांटेज की ये मेमोरी टेक्निक है। पर इंस्टीट्यूट का ये फोकस बिल्कुल भी नहीं है कि भाई बेनिफिट्स क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। थियरी के इंस्टीट्यूट पेन का ये पॉइंट्स तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ये जो भी थियरी है वो प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करनी है। केस स्टडी मतलब क्या, कि जो भी थियरी है वो प्रैक्टिकली इंप्लीकेशन केस स्टडी के अंदर देना है। तो जब तक थियरी कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होगी तब तक उसका कोई भी मतलब नहीं है। और करेक्ट थियरी इन द सेंस कि जो पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं उसको मैं थियरी बोल रहा हूँ, अदरवाइज थियरी भी थियरी नहीं है, थियरी भी प्रैक्टिकल है। मतलब करेक्ट। कि एक्चुअल में लीन सिस्टम एक थियरी है, और लीन सिस्टम लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कॉस्ट को रिड्यूस करना था। तो प्रैक्टिकली कोई सिचुएशन हुई थी कि भाई कॉस्ट को रिड्यूस करने की जरूरत है, तब जाके कोई थियरी इन्वेंट की। तो वो करेक्ट प्रैक्टिकल सिनेरियो है और उसको सिर्फ पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, इसलिए मैं इसको थियरी बोल रहा हूँ, अदरवाइज ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि
एक्चुअल में थियोरेटिकल पोर्शन एंड प्रैक्टिकल पोर्शन का वेटेज कितना है, एक एनालिसिस यस, प्रिपेयर एवरीवन किया है। स्टे फोकस्ड, वेटेज वेटेज वेटेज, यस। ये कौन सा ठीक है, वेटेज है सर, थियरी और प्रैक्टिकल वाला? हाँ, एक 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 पोर्शन मैंने कैलकुलेट किया है थियोरेटिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे आपको थियरी पूछी जाती है और थियरी का एप्लीकेशन पूछा जाता है कि भाई आपको थियरी पता है, आपको एक सिनेरियो प्रोवाइड कर दिया, वो सिनेरियो के अंदर आप थियरी को कैसे लिंक कर सकते हैं, आपको जितनी थियरी का नॉलेज है वो थियरी आप सिनेरियो के अंदर कितना लिंक कर सकते हैं। तो थियरी एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस सेकंड कैटेगरी क्रिएट किया है, प्रैक्टिकल एंड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, और लास्ट में है बोथ, मतलब ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे दोनों चीज कंबाइन है, मतलब जहाँ पे थियरी रिक्वायरमेंट, प्रैक्टिकल थोड़ा कंबाइन में आता है, करेक्ट। मतलब तीन रिक्वायरमेंट है तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर पूछ लिया कि कैलकुलेशन करो, एंड सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर पूछ लिया कि वो करो, एनालिसिस करो। सर मई 18 से न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ था, मई 18 से पहले सिर्फ ओल्ड कोर्स था। पहले आप समझ लीजिए, इन्होंने टेबल में वाई ही हैज टेकन वेटेज फ्रॉम May 18 बिकॉज May 18 से नया सिलेबस स्टार्ट हुआ था। सो जहां से नया सिलेबस स्टार्ट हुआ वहां से लेके जुलाई 21 का दिख रहा है टेबल में सर। दिसंबर 21 का भी मैंने प्रिपेयर किया है, एक सेकंड ये रहा। अरे बढ़िया, हाँ। दैट इज सीएम मोनिश का नंबर फॉर यू। ही हैज प्रिपेयर्ड एवरीथिंग टिल December 21। May 22 का क्या आएगा सर, वो भी प्रेडिक्ट कर दो। वो तो स्टूडेंट्स को प्रेडिक्शन के लिए रखेंगे। यस यस, चलो। हाँ सर, तो मई 18 से पहली बार, सबसे पहले मई 18 के अंदर क्या था कि ओल्ड कोर्स का माहौल ज्यादा था, क्योंकि न्यू सिलेबस क्या है लोगों को एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं थी, तो थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को कंफर्ट देने के लिए इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिकल पोर्शन 70 मार्क्स के लिए टेस्ट कर लिया। फिर ग्रेजुअली प्रैक्टिकल पोर्शन का वेटेज रिड्यूस होता गया। नवंबर 18 के अंदर सिर्फ 40 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मई 19 के अंदर 40 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, नवंबर 19 के अंदर 25 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, नवंबर 20 के अंदर 40 मार्क्स के, फिर 44 एंड लास्ट में आप देखेंगे दिसंबर 21 के अंदर 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल पूछा, अभी थियोरेटिकल वेटेज। मई 19 के अंदर थियोरेटिकल पोर्शन का वेटेज कितना था, 80 मार्क्स, और लास्ट जो भी अटेम्प्ट गया उसके अंदर थियोरेटिकल वेटेज कितना था, 75 मार्क्स। तो अभी जो Oh, so स्टूडेंट्स sir, ने, let us go slow over here. So May 19 theory questions, theoretical and application based, यानी कि जहाँ पे बच्चों को पैराग्राफ बेस्ड आंसर्स लिखने हैं, करेक्ट, दैट वाज 80 मार्क्स। एंड हाँ December 21 में थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो थे दैट इज 75 मार्क्स, करेक्ट। हाँ, So और ये that's a 80 big eye मार्क्स का opener जो, for the students. Yes. करेक्ट, ये 80 मार्क्स का जो भी बाइफर्केशन है ना, उसके अंदर भी आपको दिखेगा कि कॉन्सेप्ट वाइज 80 मार्क्स का बाइफर्केशन क्या है, वो एनालिसिस भी मैंने प्रिपेयर करके दिया है कि 80 मार्क्स से थियोरेटिकल पोर्शन है। अच्छा, आपके पास ऐसा एनालिसिस भी है कि 80 मार्क्स का जो थियरी क्वेश्चन था हाँ, उसमें भी कॉन्सेप्ट वाइज कौन से क्वेश्चंस थे? करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। ऐसे ही तो रैंक नहीं आया भाई आपको, करेक्ट, परफेक्ट। सो दैट इज द एनालिसिस। अच्छा, ये एनालिसिस आपके यूट्यूब चैनल पे मिल सकता है? ये एनालिसिस की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा सर, यूट्यूब के अंदर मेरे रिवीजन वीडियोस हैं, वो रिवीजन करेक्ट, वीडियोस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ कि ये करेक्ट। तो चैप्टर में सर से, मुझे मेरे स्टूडेंट्स के लिए पीडीएफ एक दे देना प्लीज, मुझे प्लीज। हाँ हाँ, हाँ, वो इतना आपके फ्री लिए फ्री में, इतना फ्री करूंगा। में, प्लीज। ओके। यस यस, कंटिन्यू कंटिन्यू सर। ठीक है, तो अगर आपने डिसीजन मेकिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया है ना, तो आपको पता चल रहा है कि आपका कितना कवर हुआ है और कितना कवर होना पेंडिंग है। तो अभी क्लियर कट है कि थियोरेटिकल पोर्शन का वेटेज है। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ सर, सबसे बड़ी गलती, एससीएमपी सेकेंड ग्रुप का सबसे कम स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसके सिर्फ दो रीजन है। रीजन नंबर 1 ये है कि लोग प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और थियोरेटिकल पोर्शन के ऊपर ध्यान नहीं देते, और वो मैंने प्रूव भी कर दिया कि थियोरेटिकल पोर्शन का वेटेज कितना है। करेक्ट। तो एससीएमपी के अंदर कम मार्क्स आते हैं सिर्फ दो रीजन की वजह से। रीजन नंबर 1 मैंने डिस्कस किया, अभी मैं रीजन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ, और वो रीजन नंबर 2 सर है एबीसी एनालिसिस। यूट्यूब के अंदर आपको कितने वीडियोस मिलेंगे जो आपको एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं कि अरे ये ये चैप्टर दो का, रीजन की वजह से पूरा करियर खत्म हो रहा है बच्चों का। सो रीजन वन इज दैट स्टूडेंट्स फोकसिंग मोर ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड थियरी को कोई ना कोई तरीके से शॉर्ट में करने की ट्राई करते हैं। या आपको तो पता ही होगा सर, कितने सारे टेलीग्राम चैनल्स वगैरह हैं हाँ तो हाँ, जिसमें कुछ ऐसा 10 पेज में थियरी, 12 पेज में थियरी, 15 पेज में थियरी, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, ऐसा बांटते रहते हैं। So that is one reason, and I think second reason is what you said perfectly, is the ABC analysis of various chapters. No, जो और उसके ABC पीछे का भी मैं आपको रीजन प्रूव करता हूँ कि एबीसी एनालिसिस फॉलो करने से आपके मार्क्स क्यों नहीं आएंगे, और वही रीजन की वजह से मैंने ये वेटेज एनालिसिस प्रिपेयर किया है। क्योंकि ऐसे ही मैं आपको ज्ञान दे दूंगा ना, आपको भरोसा नहीं आएगा कि मैंने आप करेक्ट। प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ कि क्या है। देखो फॉर एग्जांपल हम अटेम्प्ट वाइज एनालिसिस करेंगे कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, ठीक है।
सबसे पहले मे 18 अटेम्प्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो मे 18 अटेम्प्ट को लॉजिकली देखना मतलब वो थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाएगा, मे क्योंकि 18 मे अटेम्प्ट वी विल कंसीडर, जैसे ट्रेंड एनालिसिस का एक रूल होता है कि अनयूजुअल चीज को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, सो वी विल एक्सक्लूड मे बी मे 18 अटेम्प्ट एज सच, यू नो, बिकॉज मे 18 में जैसे कि आपने कहा कि ओल्ड कोर्स का माहौल ज्यादा था तो प्रैक्टिकल से पूछ लिया था, बाकी तो थियरी का ही ज्यादा वेटेज रहा है। करेक्ट। फिर सर नवंबर 18 के अंदर एक चैप्टर है थियोरेटिकल बेस्ड चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। नवंबर 18 के अंदर चैप्टर नंबर 4, अकेले चैप्टर नंबर 4 का वेटेज 40 मार्क्स का था। सिर्फ चैप्टर 4 नवंबर 18 वाज 40 मार्क्स। करेक्ट। करेक्ट। अभी ये चीज को देख के लोगों ने एबीसी एनालिसिस किया होगा कि चैप्टर 4 का वेटेज 40 मार्क्स का है, कंसीडरिंग चैप्टर नंबर 4 एज इंपॉर्टेंट चैप्टर। करेक्ट। फिर आया सर मे 19 की एग्जाम। मे 19 के अंदर भी चैप्टर नंबर 4 आया 30 मार्क्स के लिए। 30 मार्क्स के लिए, तो नवंबर 18 एंड मे 19 चैप्टर 4 40 मार्क्स एंड 30 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। करेक्ट। फिर चैप्टर नंबर 6 आया 40 मार्क्स के लिए, जो अभी तक इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया था। करेक्ट। यहाँ पे एबीसी एनालिसिस फॉलो किया होगा। एबीसी एनालिसिस मतलब क्या, कि भाई पास्ट ट्रेंड को देखना और इंस्टीट्यूट के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना, यही होता है एबीसी एनालिसिस। करेक्ट। एबीसी एनालिसिस के अंदर रोज कुछ नहीं होता, और इंस्टीट्यूट जानबूझ के ये कर रहा है कि आप मेरा बिहेवियर प्रेडिक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं ना, मैं बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करूंगा। वो तो आप इंस्टीट्यूट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो तो चाहता ही है कि सारे चैप्टर्स आप प्रिपेयर करके जाओ, तो ऑडिट में भी वही कहानी है। सर वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट्स दिख रहा है आपके पास, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स है, चैप्टर 4 का दिखाएंगे प्लीज वो टेबल, बहुत मस्त हाँ है। हाँ, तो तो ये नवंबर 18 मई 19 40 30 एंड जैन 21 जुलाई 21 में 0 एंड 5 मार्क्स। यहाँ पे सर इतना देख के लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया होगा कि चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ए कैटेगरी दिया होगा। और इंस्टीट्यूट ने बोला कि इसको ए कैटेगरी ये इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ के जाओगे ना, ले इसमें से बिल्कुल नहीं पूछना। तो करेक्ट। 5 मार्क्स का पूछा, 20 मार्क्स का पूछा, तो फिर बिल्कुल। नवंबर 18 मई 19 के बेसिस पे जब तब कुछ प्रोफेसर्स ने और कुछ एनालिस्ट ने जो यूट्यूब वीडियोस दिए रहेंगे, मेंटर्स ने, एनालिस्ट ने, प्रोफेसर्स ने, अबाउट एबीसी एनालिसिस, तो हम आगे जाके देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ने वहां पे सरप्राइज कर दिया। ऑल राइट। फिर चैप्टर नंबर 6, ये 40 मार्क्स का आया सर, यहाँ पे भी ए कैटेगरी दिया होगा। और फिर करेक्ट। इंस्टीट्यूट ने क्या रिएक्ट किया वो हमारे सामने है। फिर सर ये अचानक से इंस्टीट्यूट, बहुत डिटेल एनालिसिस है आपका, कंसेप्ट वाइज इट इज सुपर्ब। मैंने बहुत एबीसी एनालिसिस देखे लेकिन ऐसे कंसेप्ट वाइज नहीं देखे हैं। सर फिर मे 19 अटेम्प्ट, तो मे 19 अटेम्प्ट का डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे लोगों ने ए कैटेगरी दिया होगा और इसको भी ए कैटेगरी दिया होगा, और इसको फॉर एग्जांपल या तो बी कैटेगरी दिया होगा या तो सी दिया होगा। तो नवंबर 19 से इंस्टीट्यूट ने बोला कि इसको बी या तो सी दे रहे हैं ना, इसका वेटेज ज्यादा कर सकते हैं। Correct. सिमिलरली So we can understand over here two biggest mistakes. First, students focusing more on practical, not on theory. And second, students following the ABC analysis, and that becomes the biggest mistake. All right. Understood, sir. सर चैप्टर नंबर 7 का भी एक बार लास्ट डिस्कस कर लेते हैं। मे Yes, yes. 18, नवंबर 18 और मे 19, 3 अटेम्प्ट तक इंस्टीट्यूट ने कुछ मेजर नहीं पूछा था। लोगों ने इसको सी कैटेगरी प्रोवाइड कर दिया कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन सी कैटेगरी का है, और फिर आपके सामने 38 एंड 40, और जैसे ही 38 एंड 40 हुआ ना, फिर इसको ए कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया इंस्टीट्यूट ने, बोला कि इसको ए मतलब वही कैटेगरी प्रोफेसर में। जो इसको सी कैटेगरी में बोलते थे अब उसको ए कैटेगरी में बोलते हैं। फिर ए कैटेगरी बोल दिया तो इंस्टीट्यूट ने वापस से वेटेज रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मतलब क्लियर कट ये है सर कि इंस्टीट्यूट को भी पता है कि यूट्यूब के अंदर क्या वीडियोस चल रहे हैं। करेक्ट। 1 लाख स्टूडेंट को पता है कि एबीसी एनालिसिस चल रहा है, तो इंस्टीट्यूट को भी पता है कि एबीसी एनालिसिस चल रहा है। तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट ये प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के अंदर फॉलो नहीं होने देगा। अगर कोई गलत प्रैक्टिस फॉलो हो रही है तो इंस्टीट्यूट ये चीज फॉलो नहीं होने देगा, और जितना जल्दी हो सके उतना रियलाइज करना जरूरी है। अभी फॉर एग्जांपल किसी ने नवंबर 19 के अंदर एबीसी एनालिसिस फॉलो किया होगा, बिल्कुल भी उसका पेपर अच्छा नहीं गया होगा। उसने, अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर 20 में है, आपके पास टाइम है कि ये चीज रियलाइज कर लो कि इंस्टीट्यूट कभी भी ये चीज फॉलो नहीं होने देगा। इंस्टीट्यूट भी वीडियो देख लेगा कि भाई कौन सी फैकल्टी ने क्या एबीसी एनालिसिस दिया है, और उसके मुताबिक पेपर सेट नहीं भी करता। अरे उनके पास टीम है पूरा टू एनालाइज फॉर एवरी सिंगल सब्जेक्ट, यू नो, फॉर देयर पेपर सेटिंग एंड कंटेंट बुक। आई नो देयर टीम, ऑडिट में तो 6-6 7-7 जन का टीम है पूरा। So Monish sir has given two things and I hope you will appreciate this. ये PDF तो मैं उनसे चुराने वाला हूँ, that is for sure. One is, you know, कि what is SCMP paper, what is SCMP syllabus, sorry, and कैसे divided है, and superb eye-opener analysis of the weightage distribution. And his summary is that 2 mistakes students committing. One, you know, that focusing more on practical and not doing the theory part properly, and second, going blindly by the ABC analysis, which is a blunder. And this thing you can come to know only from a student, only from a person who has scored 81 marks himself. Yes sir,
आप अब बच्चों को ये बता दीजिए सर कि उनका ब्रॉडली एससीएमपी में स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए पढ़ने के लिए। एक थोड़ा समरी उससे में, पहले ज्यादा तो सर एक आप नहीं छोटा बता सा, सकते पर एक थोड़ा समरी में सर। हाँ हाँ सर, एक छोटा सा पॉइंट उससे पहले, प्लीज प्लीज प्लीज। इंस्टीट्यूट का एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि देखो अभी तक क्या है कि इंस्टीट्यूट जब भी फोकस करेगा ना, टोटल 11 चैप्टर्स में से कोई भी 3 से 4 चैप्टर के ऊपर फोकस करेगा, और 3-4 चैप्टर में से इतना अंदर घुस के पूछेगा ना जितना आपने सोचा भी नहीं। तो मतलब मतलब समझो समझो अगर मैंने ऐसा अप्रोच यूज किया एज ए स्टूडेंट पढ़ाई करते वक्त कि मैं सारे कंसेप्ट का थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाऊंगा, तो नहीं तो चलेगा, तो भी मैं बिल्कुल घुस भी नहीं जाऊंगा चलेगा। पेपर में, तो भी मैं घुस जाऊंगा आप पेपर में। आपको कोई भी अटेम्प्ट का पेपर उठा के देखना है ना, कोई भी अटेम्प्ट का पेपर उठा के देख लो, आपको पता होगा कि ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है सर। फॉर एग्जांपल जस्ट इन टाइम, तो जस्ट इन करेक्ट। टाइम शायद इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स को पता होगा कि जब जरूरत होगी उस टाइम पे परचेस करना। तो जब भी वो जस्ट इन टाइम रिवाइज कर रहा होगा, उसको लग रहा है कि हाँ जस्ट इन टाइम मतलब जरूरत होगी परचेस करना, घुमाओ पेज, जस्ट इन टाइम रिवाइज हो गया। पर इंस्टीट्यूट जस्ट इन टाइम जब पूछता है तब ऐसे नहीं पूछता कि जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है और 2 लाइन में एक्सप्लेन करो, वो अंदर घुस के पूछेंगे। और जब अंदर घुस के पूछेंगे तो मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर से कर लिया वैसा नहीं चलेगा। तो जब भी इंस्टीट्यूट कोई भी चीज पूछता है तो अंदर जाके पूछता है। ये बहुत बड़ी बात बोली सर, मैं आपकी बात को जरा समराइज करके बच्चों तक पहुंचाता हूं। इन्होंने कहा दैट सपोज अभी आपने देख लिया कि कोई भी चैप्टर से कैसे भी क्वेश्चंस आते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कोई एक ही चैप्टर से बार बार एक कैटेगरी वाले चैप्टर्स क्रिएट करके क्वेश्चन आए। बट इन्होंने जो बोला कि कोई भी अटेम्प्ट का पेपर उठा के देख लो, सर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कोई भी अटेम्प्ट का पेपर उठा के देख लो तो कुछ 3-4 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें से इंस्टीट्यूट डिटेल में जाके पूछता है, और वो भी वो 3-4 चैप्टर्स रिपीटेडली वही चैप्टर्स आते हैं, ऐसा नहीं है वो मेरी गो राउंड की तरह चेंज होता रहता है, पर 3-4 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें इंस्टीट्यूट डिटेल में जाके पूछता है। तो अगर आपने समथिंग ऑफ एवरीथिंग वाला अप्रोच यूज किया कि मैं थोड़ा थोड़ा सारे कंसेप्ट से पढ़ के जाऊंगा, स्टिल यू मे नॉट स्कोर प्रॉपर मार्क्स, दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। करेक्ट सर? हाँ सर, और इसका क्लियर कट रीजन ये भी है सर कि एससीएमपी वैसे देखने जाए ना इतना ज्यादा पुराना नहीं है। एक करेक्ट। पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो एससीएमपी के अंदर काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट ऐसे है जो अभी तक टेस्ट ही नहीं हुए। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 कितना टेस्ट हुआ है आप देखो। चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल टेस्ट नहीं हुआ। फिर चैप्टर नंबर काफी 2, वर्जिन है सब्जेक्ट अभी तक, काफी सारे कंसेप्ट बाकी है टेस्ट करने के। करेक्ट। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 3 30 मार्क्स के लिए टेस्ट हुआ था, तो उसमें से भी सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट टेस्ट हुए थे। कॉन्सेप्ट के अंदर जाके एकदम डिटेल में क्वेश्चन ड्राफ्ट कर दिया। बाकी राइट। काफी कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो अभी तक अनटेस्टेड है। हम्म। करेक्ट करेक्ट। दिस इज तो सुपर सर मैं जो एनालिसिस, भी चीज दिस बोल इज रहा हूँ सुपर। मतलब मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बोल रहा हूँ कि आइडियली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। करेक्ट। ये तो बहुत अभी बड़ा आई ओपनर है सर, बच्चों के लिए बहुत बड़ा आई ओपनर है सर। तो सर फैक्ट नंबर 1 ये है कि थियोरेटिकल वेटेज ज्यादा है। फैक्ट नंबर 2 ये है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आएगा वो क्लैरिटी नहीं है, तो एबीसी एनालिसिस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 3 ये है कि इंस्टीट्यूट हर बार जो कॉन्सेप्ट अनटेस्टेड है ना उसके अंदर अंदर घुस के पूछ सकता है। ऊपर सर ऊपर ये से नहीं, वो भी सारे, अंदर घुस के एकदम। हाँ हाँ, करेक्ट। तो उसका अभी अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि हमें कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। तो मैंने क्या किया है, आप क्वेश्चन बैंक देख लो, ये मैंने क्वेश्चन बैंक का एक्सट्रैक्ट ही दिया है। क्वेश्चन बैंक के स्टार्टिंग में मैंने ये एनालिसिस दिया है ताकि क्वेश्चन बैंक को भी किस तरह से टेकल करना है वो आपको स्टार्टिंग में क्लैरिटी रहेगी। करेक्ट। तो देखो कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो या तो कॉन्सेप्ट वर्ड्स, मैंने जो भी So चीज sir, पूरे एससीएमपी। now you are starting to explain students ki what should be the strategy, correct? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। तो अभी हम लोग पार्ट 3 की तरफ जा रहे हैं हमारे डिस्कशन में। पार्ट 1 वाज व्हाट इज एससीएमपी, पार्ट 2 वाज कंप्लीट वेटेज एनालिसिस एंड कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स कमिट, एंड पार्ट 3 नाउ सर इज टेलिंग दैट ब्रॉडली स्टूडेंट का अप्रोच क्या होना चाहिए टुवर्ड्स एससीएमपी। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। सर जो भी चीज कंप्लीट करनी है ना वो कॉन्सेप्ट वाइज कंप्लीट करनी है। अभी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल उठा के आप देखेंगे ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉन्सेप्ट रीड कर लिया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर इंस्टीट्यूट ने मान लो मॉड्यूल के अंदर 2 पैराग्राफ दिए, पर जब भी आप टोटल क्वालिटी के मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे ना, कितना ज्यादा पोर्शन आपको ऐसा मिलेगा जो अपने मॉड्यूल के अंदर नहीं था। मतलब ये अच्छा कॉन्सेप्ट कर के रहे हो अंदर। सर आप, एक कंसेप्ट का बता दीजिए। परफेक्ट। एक टोटल क्वालिटी हाँ मैनेजमेंट 2 पैराग्राफ दिया, बट अगर क्वेश्चन में जाके देखो तो एप्लीकेशन बहुत ज्यादा डिटेल में है। करेक्ट। करेक्ट। तो सिर्फ आप मॉड्यूल पढ़ के जाएंगे और आपको लग रहा है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपका कवर हो चुका है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो वैसा नहीं होगा। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना आपको पता चलेगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर मुझे लग रहा था कि कॉन्फिडेंस है, पर क्वेश्चन रीड करके कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। करेक्ट। तो मतलब अल्टीमेट फोकस क्या होना चाहिए कि आप जो भी चीज कंप्लीट करो ना वो चीज कॉन्सेप्ट वाइज कंप्लीट करनी है। इससे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे।
बेनिफिट नंबर 1 कि फॉर एग्जांपल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर भी सोल्व कर लिया, अभी आपको 100% कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर मुझे कितना आता है, मैं कितनी चीज टैकल कर पाऊंगा। चैप्टर वाइज आप कभी भी करेंगे तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर दो चीज है कि आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिया फिर क्वेश्चंस पढ़ लिए। बेनिफिट नंबर 1 ये होगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपका एग्जॉस्टिव कवरेज हो जाएगा। और सेकंड सर ये कि आपको ये भी क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा कॉन्सेप्ट है ना जिसके लिए क्वेश्चन ही अवेलेबल नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो कॉन्सेप्ट एकदम अंदर घुस के आपको पढ़ना है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट कभी भी टर्न ले सकती है वो कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट शुड स्टॉप लुकिंग चैप्टर्स एज चैप्टर्स, और एक चैप्टर के अंदर अगर 10 कंसेप्ट है एंड फॉर एग्जांपल 11 चैप्टर के अंदर टोटल ऑन एन एवरेज 10 कंसेप्ट है, तो एससीएमपी स्टूडेंट्स को देखना चाहिए एज अ कलेक्शन ऑफ 110 कंसेप्ट्स रादर देन लुकिंग एट 11 चैप्टर्स। करेक्ट? करेक्ट सर। ऑलराइट, ग्रेट सर ब्रॉडली ये कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रेटेजी फॉलो होनी चाहिए, अदरवाइज प्रैक्टिकल के ऊपर तो हाँ मतलब यही चीज प्रैक्टिकल पोर्शन हो या तो थियोरेटिकल पोर्शन हो, जो भी चीज हमें करनी है कॉन्सेप्ट वाइज कंप्लीट करनी है और कॉन्सेप्ट वाइज हमें कॉन्फिडेंस लेता जाना है। एक और चीज हम ये कर सकते हैं कि मान लो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको बोला कि मॉड्यूल के अंदर 2 पैराग्राफ पढ़ लिए पर क्वेश्चन के अंदर कुछ नया सीखने को मिला, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो नया सीखने को मिला हम कॉन्सेप्ट के साथ ही लिख सकते हैं ताकि करेक्ट। तो फ्यूचर दो में जब पैराग्राफ जो भी मॉड्यूल के हैं प्लस हाँ क्वेश्चन के अंदर कुछ इंस्टीट्यूट ने और नया समझाया है, तो उतना करेक्ट एक्स्ट्रैक्ट लेके मॉड्यूल के पैराग्राफ्स के नीचे या तो अपनी जो नोट्स बना रहे हैं उसमें वो लोग एक्स्ट्रा करेक्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट नया था जो थियरी में नहीं था लेकिन क्वेश्चन में था। करेक्ट करेक्ट। ओ गुड गुड, नाइस स्ट्रेटेजी, नाइस स्ट्रेटेजी, यस। और सर ये स्ट्रेटेजी में मैंने ऑलरेडी मेहनत करके रखी है, तो स्टूडेंट को शायद टाइम सेव करना है तो मेरी बुक्स के अंदर मैंने ऐसे ही बुक डिजाइन की है कि कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट का डाल दिया और वो कॉन्सेप्ट के नीचे लर्निंग भी दे दिया जो क्वेश्चन में से मिल रहा था। ऑलराइट, सो सर अभी ये पता चल गया कि स्टूडेंट का ब्रॉडली इसमें अप्रोच क्या होना चाहिए। आई वुड करेक्ट सजेस्ट कि अब प्लीज लेट अस कम टू दैट पार्ट आल्सो कि आपको सिंस सब कुछ पता है दैट हाउ इट इज हैपनिंग, तो हाउ कैन यू हेल्प द स्टूडेंट्स ओवर हियर। आपके पास फ्री रिसोर्सेज क्या है स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, आपके पास बुक्स क्या है और आपके प्रोडक्ट्स क्या है। करेक्ट? तो सर सबसे पहले तो आप फ्री रिसोर्सेज के बारे में बताइए, बिकॉज जो स्टूडेंट्स अगर फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या करेक्ट ऐसा सर। कुछ है, तो फ्री रिसोर्सेज और बुक्स के बारे में बता दीजिए, देन यूड लेट अस नो अबाउट योर लेक्चर्स। मैंने सर दो पर्सनली पार्ट में सर के डिवाइड। लेक्चर देखे हुए हैं और मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम एससीएमपी समझ में आया है। ऑलराइट, एंड दैट इज व्हाई आई हैव लॉन्च्ड दिस कोर्स ऑन माय ऐप आल्सो। बट सर इसके बारे में बता दीजिए, फ्री रिसोर्सेज और बुक्स के बारे में प्लीज। सर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा सेल्फ स्टडी और सेकंड होगा लेक्चर्स। तो लेक्चर्स Superb. को अभी के लिए This साइड is में the करते हैं। this is the quality of a gentleman. He is first also telling you that you can go by self study, and if you don't want to go by self study, then he will talk about his lectures. Very good, superb sir, superb. Please continue. हाँ मतलब जनरली ये डाउट आता है कि एससीएमपी सेल्फ स्टडी से हो सकता है या तो नहीं हो सकता। इस दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से हो सकता है, आपको मून पे भी जाना है Superb, ना तो वो भी आप सेल्फ स्टडी से जा superb. सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से हो सकता है, yes. ठीक है, तो सेल्फ स्टडी के अंदर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो सबसे पहली चीज सेल्फ स्टडी के अंदर क्या अप्रोच होना चाहिए स्टूडेंट का, कि जनरली जिसको सेल्फ स्टडी वो जो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं ना उसका एक ही अप्रोच होता है कि मुझे कॉन्सेप्ट का बेसिक आइडिया दे दो, जो मॉड्यूल के अंदर लिखा है उसका बेसिक आइडिया दे दो, क्वेश्चंस के अंदर क्या नया सीखने को मिला उसका बेसिक आइडिया दे दो। इतना बेसिक आइडिया दे दिया ना उसके बाद मैं मॉड्यूल भी रीड कर लूंगा, मैं क्वेश्चन आंसर भी सोल्व कर लूंगा। जिसको सेल्फ स्टडी करनी है उसको कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद वो अपने हिसाब से भी टेकल कर सकते हैं। तो वो चीज के अंदर मैंने यूट्यूब के अंदर सर रिवीजन वीडियोस अपलोड करके रखा है। We'll go step by step. Go slow sir, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के लिए। So self study में he is saying that you can study concept wise, प्लस मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट्स है उसका लिस्ट बना सकते हो। एंड मोनिश कानाबा सर यूट्यूब में रिवीजन लेक्चर्स है, एंड आई थिंक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ व्यूज है सर उसके ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑन दोस रिवीजन लेक्चर्स। यस हाँ सर, और रिवीजन वीडियोस जो भी है उसके अंदर भी मैंने कॉन्सेप्ट वाइज बाइफरकेशन दे के रखा है। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना है ना तो आप रिवीजन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। तो करेक्ट। रिवीजन वीडियोस में से आपको कॉन्सेप्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, मॉड्यूल के अंदर जो लिखा है उसका भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, क्वेश्चंस में से कुछ नया सीखने को मिला उसका भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। और वो अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए भी मैंने क्वेश्चन बैंक बना के रखी है और वो क्वेश्चन बैंक भी कॉन्सेप्ट वाइज बना के रखी है। तो Second, so आइडियली wait. First is YouTube free revision lectures. Second, Monish Kanabar sir has his own question bank. सर ये क्वेश्चन बैंक का थोड़ा आप आइडिया दोगे क्या है?
सर बेसिक ये है कि जिसको सेल्फ स्टडी करनी है ना, वो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन बैंक सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी है। मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्फिडेंस लेना होगा, और कॉन्सेप्ट वाइज जब भी आपको कॉन्फिडेंस लेना है तो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करने हैं। तो पूरी क्वेश्चन बैंक के अंदर मैं आपको एक सेकंड क्वेश्चन बैंक का इंडेक्स एक बार ओपन करके दिखाता हूँ, अगर मिल जाएगा तो एक सेकंड। He's just showing the question bank that he has, and with a lot of smart work, you can finish off the syllabus. सर क्वेश्चन बैंक का इंडेक्स मुझे अभी नहीं मिल रहा है। चलेगा सर, चलेगा चलेगा सर, वो तो आपके YouTube वीडियोस पे भी है ना क्वेश्चन बैंक, सो दैट इज ओके। मतलब अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि कॉन्सेप्ट वाइज जो भी है ना, मैंने क्वेश्चन बैंक को कॉन्सेप्ट वाइज प्रिपेयर किया है, और उसको भी मैंने लॉजिकल सीक्वेंस अरेंज किया है। फॉर एग्जांपल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आपको एक ही साथ मिल जाएंगे, तो उसके अंदर भी लॉजिकल अरेंजमेंट है कि सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस आए वैसा क्वेश्चन है, फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और। I think sir 1000 plus or more than those students are already using your question bank, if I'm not wrong. Correct. Yes sir, 6000 plus students are using. 6000 plus students are using your question bank, correct. So that is one question bank that can help students. So one is YouTube revision lectures, one is question bank. All right, or sir, yes please. जिसको सेल्फ स्टडी करनी है ना सर, वो लोग रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं। रिवीजन वीडियोस में से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लेके सिर्फ क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो भी आपने सीक्वेंस वाइज अरेंज किया है। तो जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अगर है तो क्वेश्चन नंबर 1 2 ऐसे ऊपर जाता जाएगा, करेक्ट? नहीं, मैंने हेडिंग भी दिया है कि यहाँ से अभी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, और टोटल 4 क्वेश्चन है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, करेक्ट। तो आपको एंड टू एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है कि काइजन कॉस्टिंग, उसके क्वेश्चंस है, पर मान लो उसके क्वेश्चंस नहीं है, तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अभी आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, तो उसके अंदर भी आप सोच सकते हैं कि अच्छा इतना सा कंटेंट दिया है, ये कंटेंट में से और नया क्या पूछ सकते हैं, तो वहीं भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये क्लैरिटी मिलनी जरूरी है कि कितना कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है और कितना अभी तक नहीं हुआ है, और नहीं तो हुआ सर है ये उसका क्वेश्चन बैंक में कुछ आपके तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है which which can help the students, or it is a compiler of all the module questions but arranged in a nice manner? सर 90% क्वेश्चंस टोटल, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बैंक के अंदर 100% क्वेश्चंस है ना, उसमें से 10% क्वेश्चंस आर ड्राफ्टेड बाय मी एंड 90%। अच्छा, तो you have drafted your own questions also. Good. So it is not just the compiler. करेक्ट। एंड इंस्टीट्यूट के जितने भी अभी तक रिसोर्सेज है, भले ही वो पास्ट पेपर है, भले ही वो आरटीपी है, भले ही वो एमटीपी है, अभी तक जितने भी रिसोर्सेज जो आपके दिमाग के अंदर आ सकते हैं, सारे रिसोर्सेज क्वेश्चन बैंक के अंदर कंपाइल्ड है। एडिशनली मैंने भी क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन, जिसको मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट को और कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए। करेक्ट। और सर अगर सबको समझो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सब दिमाग खराब नहीं करना है, खुद से करने का टाइम नहीं है, आर्टिकलशिप है, सब चल रहा है, देन इन दैट केस पूरा कोर्स अगर लेना सब्सक्राइब करना हो, तो आपने क्या ये सब कुछ जो आपने बताया, हैव यू इंक्लूडेड दैट इन योर ओन कोर्स? हाँ सर, उसके अंदर मैं सब स्पून फीडिंग करवा देता हूँ। उसके अंदर आपको स्टूडेंट्स को कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जितनी चीज एससीएमपी के अंदर करनी जरूरी है ना, वो सारी चीज जो मैंने अभी तक बोली, वो सारी की सारी चीज, भले वो थियोरेटिकल के ऊपर ज्यादा फोकस देना हो, प्रैक्टिकल के ऊपर भी इक्वल फोकस देंगे। जो कॉन्सेप्ट टेस्ट नहीं हुए हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, और वो कॉन्सेप्ट में से क्या टेस्ट हो सकता है, जो कॉन्सेप्ट टेस्ट नहीं हुआ है उस पर भी ज्यादा ध्यान देंगे। करेक्ट। उसके ऊपर क्या टेस्ट हो सकता है उसका भी डिस्कशन करेंगे, एंड डेफिनेटली जो कॉन्सेप्ट टेस्ट हुए हैं उसके ऊपर तो कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। करेक्ट सर। तो सर आप yes, so there are 3 resources from your side to summarize. One is the revision lectures which are uploaded for free on YouTube. Second, your exhaustive question bank, covering all the concepts of the module and arranged in a nice logical manner. And it also has this concept wise weightage in your question bank also, right? हाँ सर, और एक और कॉन्सेप्ट बुक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई कंटेंट है जो आपको मॉड्यूल के अंदर देखने को मिलेगा, एडिशनल कंटेंट क्वेश्चन बैंक के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन बैंक का लर्निंग मैंने अलग से साइड में लिख दिया है, मतलब मॉड्यूल का कंटेंट प्लस क्वेश्चन का लर्निंग, वो मैंने साथ में मर्ज करके कॉन्सेप्ट, एक कंसेप्ट बुक है, एक कंसेप्ट बुक भी है और एक क्वेश्चन बैंक भी है, वेरी सॉर्टेड। सो कंसेप्ट बुक में पूरा कंसेप्ट और वो मॉड्यूल का कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन बैंक से कुछ एक दो नई चीज देखने मिली तो उसका भी कंसेप्चुअल लाइन वहां पे लिख दिया है। तो जो आपने बच्चों को स्ट्रेटेजी बताया कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि हर एक कंसेप्ट का पैराग्राफ फ्रॉम द मॉड्यूल प्लस क्वेश्चन बैंक में से कुछ नया पॉइंट्स मिलता है, तो वो ये सब कंपाइल करके आपको नोट्स बना लेनी चाहिए। तो वो नोट्स ऑलरेडी आपने बनाई है, दैट इज कंसेप्ट बुक, एंड देन देयर इज अ लॉजिकल क्वेश्चन बैंक आल्सो व्हिच यू हैव इट विथ यू।
correct? And students can learn more from the free resources available on YouTube also. And I think your YouTube subscribers, I forgot to mention, it has crossed 7,500 subscribers if I'm not wrong. Yes, okay. And अगर ये सब कुछ आपको एक पैकेज में चाहिए, then in that case you can subscribe for his lectures. Good news is that his lectures are also available on our app. मैं काफी दिनों से इनके लेक्चर्स के बारे में बच्चों को मैसेजेस भेज रहा हूं, बिकॉज ही इज अ रियल जेम एंड द नेक्स्ट बिग थिंग इन SCMP, मार्क माय वर्ड्स, विद इन नेक्स्ट 5 years यू विल सी हिज नेम एवरीवेयर फॉर SCMP. तो ये जो हिडन जेम है वो मैं बच्चों के सामने लाना चाहता था. एंड सर, दिस हैज बीन एन अमेजिंग आई ओपनर फॉर मी ऑल्सो. मतलब जो बच्चे मुझे ही पूछते हैं काफी बार कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो आज के बाद एटलीस्ट एक दो चीज तो मैं SCMP का बता पाऊंगा जो आज तक मैं बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं था बताने के लिए. सो सर, आई थिंक, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू से, और वी कैन ओपन अप दिस सेशन फॉर द क्वेश्चन आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स. सर एक लास्ट है, मुझे कोई स्टूडेंट्स मेरे रिसोर्सेज यूज करे ना करे, बैच के अंदर एनरोल करे ना करे, पर एक प्रॉमिस तो स्टूडेंट के पास चाहिए कि वो एबीसी एनालिसिस को बिल्कुल फॉलो नहीं. प्रॉमिस, एवरीवन प्रॉमिस विद अ थम्स अप दैट आप कोई भी एबीसी एनालिसिस पे प्रिपरेशन नहीं करोगे. यस, ही इज नॉट सेइंग दैट यू सब्सक्राइब फॉर हिज लेक्चर्स, वो सब आपका डिसीजन है, जो करना है करो, पर सिर्फ एबीसी एनालिसिस पे नहीं करोगे आप. यस, और ये ऑडिट में भी प्रॉमिस करो ना यार, ये तुम लोग. ऑलराइट, very good, very good. Yes, now I will be leaving the session open for question answers. अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, आप रेज हैंड का ऑप्शन यूज करो जूम में, एंड वी विल लीव दिस सेशन ओपन फॉर क्वेश्चन बैंक. यस, बाकी इनके प्रोडक्ट्स की जो भी सारी डिटेल है वो आप हमारे ऐप पे पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, और आपको उसका डिटेल दिया जाएगा. ऑलराइट, एंड यू विल हैव इट ओवर देयर, नॉट अ प्रॉब्लम. अगर आप डायरेक्टली भी सब्सक्राइब करना चाहो तो नीचे है www.monishkanaba.com, वहां पे आप मेरा रेफरेंस दे देना. मोनिश सर जरूर कुछ कंसिडर करेंगे सर. ऑलराइट, एंड व्हाटएवर जो भी आपकी तरफ से बन बनता है वो मेरे स्टूडेंट्स को प्लीज आप अपनी तरफ से थोड़ा कंसिडर करके हेल्प कर दीजिएगा. ऑलराइट, ओके. सो यस, मिथिल. Yes, sir. Good afternoon, sir. Monish sir, Mithil, you are yourself a rank holder? Yes, sir. Yes, please, can you tell Monish sir about that? Yes, sir. I have secured All India 36 in CA Foundation. Okay. And yes. So I wanted to ask one question. The content which is given in the module, along with the question bank, whatever the questions are given, extra questions are given in the question bank, and the additional content which is given in the question bank. I have very much seen this thing which you have just now said in the lecture, that there is some additional content which is given in the question answers of the institute. Correct. So that additional content which is given in the question bank along with the module, that much content will be sufficient to write in the exam, right? Or is there anything more we should do? और कुछ करने का ऑप्शन ही नहीं है ना. मतलब अगर देखो, एक हमें टोटल 8 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है? अभी एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस. वाह भाई वाह. तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेना है तो हमें क्या करना होगा? इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, वहां पे भी कंटेंट देख लो, CS फाइनल का कंटेंट देख लो, CMA फाइनल का कंटेंट देख लो, तो SCMP के अंदर एब्सोल्यूट एश्योरेंस मिल जाएगा. पर टोटल 8 सब्जेक्ट्स है, तो जितना मतलब CA फाइनल का कंटेंट है उतना ही रीड करना होगा. और इतना तो कॉन्फिडेंस ले लो पहले, मतलब इतना कॉन्फिडेंस ही स्टूडेंट्स को नहीं आता, मतलब कोई अदर रिसोर्सेज देखने का टाइम भी नहीं होता. ठीक है ना? And if you go for his concept book and question bank book, I think everything is covered over there, so you will not have a problem. जो सीक्वेंस क्या होता है, काफी बार मॉड्यूल्स जो होते हैं इंस्टीट्यूट की काफी अच्छी होती है, मैं कुछ और नहीं बोल रहा हूँ, बट सीक्वेंसिंग सही तरीके से नहीं होता है. वी ऑल प्रोफेसर्स हैव फेस्ड दिस प्रॉब्लम, नहीं मोनिश सर, कि सीक्वेंसिंग में काफी बार इशू होता है. सो इन दैट केस के मॉड्यूल थोड़े टाइम में तो रिवाइज हो जाएगी, मतलब मेरे ख्याल से, क्योंकि जो नया कंटेंट है वो मॉड्यूल के अंदर डालना तो होगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. पर न्यू कॉन्सेप्ट भी सर क्वेश्चन में अंदर इशू हुए हैं. ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है वहां पे न्यू कंटेंट दिया. और ये काफी बार इंस्टीट्यूट कुछ अलग अलग PDF देता रहता है, जैसे अभी केस स्टडी डाइजेस्ट दिया था. केस स्टडी डाइजेस्ट, वो केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर कितने न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए, न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिए केस स्टडी डाइजेस्ट में. अरे यार, तो अभी उसका वीडियोस भी आप इंक्लूड करते हो कोर्स में, अगर ऐसा कुछ PDF इंस्टीट्यूट ने इशू किया तो? हाँ, वो कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर पूरा कवर्ड है, जितने भी न्यू कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर. ऑलराइट, that is one. Okay, I hope Mithil answered. Yes, Sid. Yes, Sid.
चुप रह। हेलो। यस यस प्लीज वो बैकग्राउंड वॉइस थोड़ा बंद करो। यस यस सिड टेल मी। हेलो, यस सर, अभी आवाज आ रहा है? यस अच्छा आ रहा है, बोलिए। हाँ सर, ये पूछना था मेरे को, जो ये एससीएमपी का जो अब आपका क्लासेस रिविजनरी वीडियो देखे हुए थे दिसंबर में, ठीक है? मतलब मनीष सर, आपके लिए क्वेश्चन है। तो हाँ हाँ तो रिविजनरी वीडियो देखा था और उससे मैंने ना इंस्टीट्यूट के मैथ से सेल्फ स्टडी करा था। लेकिन अभी ना मेरे को ये चीज कंफ्यूजन लग रहा है, अभी वो क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस मेरे को नहीं आ पा रहा है। तो उसके लिए क्या करा जाए यहाँ पे? क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली सॉल्व करने के लिए बच्चे क्या कर सकते हैं? सपोज काफी बार बच्चे, सॉरी सिड मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, काफी बार मैंने भी ऑब्जर्व किया कि बच्चे वीडियोस देखते हैं तो बेड पे बैठे बैठे देख लेते हैं, करेक्ट? तो अभी वो सॉल्व वॉल्व किया रहेगा नहीं किया रहेगा? सिड सच सच बताना, आपने सॉल्व किया था बेटा क्वेश्चंस जो सर सॉल्व करा रहे थे? सर नो 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 सर, अभी तक एक भी, मतलब जितना सर ने हाँ रिवाइज करवाया था ना, हमने वो पूरा सारा एक कंसेप्ट वीडियो था वो सर का रिविजनरी वाला, आई वो नो आई पूरा नो आई नो। देख लिया। पर उस आप तो रिवीजन मतलब सिर्फ सॉल्व वीडियो करते थे, देखा है। सॉल्व करते थे फिर? नो नो। अच्छा अच्छा। तो मोनिश सर सर आई मैंने थिंक आपको एक यही प्रॉब्लम तो बताया यहाँ कि पे होता है। कॉन्सेप्ट रीड करेंगे ना, स्टूडेंट को लग रहा है कि हाँ कॉन्सेप्ट पता है, पर जब तक वो क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैंने क्वेश्चन में से जो लर्निंग मिला है ना, वो लर्निंग भी कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर आपको मिलेगा। पर जब तक आप क्वेश्चन क्लासेस रीड नहीं करेंगे, आपको पता चलना जरूरी है ना कि ये कॉन्सेप्ट मैंने कॉन्सेप्ट नोट्स के के अंदर डिस्कस किया था। पर ये कॉन्सेप्ट टेस्ट कैसे होगा? तो टेस्ट राइट। कैसे होगा वो कोई चीज जानने के लिए क्वेश्चन बैंक देखनी जरूरी थोड़ा सॉल्व करो सिड, थोड़ा सॉल्विंग का बढ़ाओ, ऐसा सर बोल रहे हैं। अच्छा, ओके सर। ऑलराइट ओके। मतलब सॉल्व करना है और वो लेना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो, यस थोड़ा सर। सॉल्व करो। ओके ओके सर। यस एनीवन एल्स? मोहित अग्रवाल। Hello, sir. Sir, can you hear me? यस प्लीज। है। Sir, actually, I've started with the group 2 now. So I wanted to know self study करने के लिए मई तक मुझे एग्जाम्स देना है, तो योर मुझे क्या एग्जाम क्या इज इन मे? 22. Oh, this session was broadly for November 22 to November 23. But sir, if you can just give him हाँ quick tips May 22 के लिए कुछ। सेल्फ स्टडी के लिए एकदम क्विक कवरेज एंड क्या क्या रिसोर्सेज मुझे यूज करने चाहिए, मुझे थोड़ा गाइडेंस दे अभी सकते तक हैं? आपने क्या किया है? अभी तक आपने क्या क्या किया है? सर मैंने जस्ट स्टार्ट किया है विद आईडीटी नाउ, मतलब सो नहीं नहीं एसीएमपी नहीं, का आपको बिल्कुल SCMP में आइडिया? कुछ आपने स्टार्ट किया एससीएमपी है में नहीं सर किया? आई हैवंट स्टार्टेड विद एनीथिंग. He hasn't started एक anything. काम करो ना, थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्कशन करना होगा। मतलब ऐसे ही मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना टाइम आप एसीएमपी के अंदर अलोकेट कर सकते हैं। 100 आवर्स अलोकेट कर सकते हैं तो स्ट्रेटेजी कुछ अलग होगी, 50 में कुछ अलग होगी, 150 में कुछ अलग होगी। तो एक बार डिटेल डिस्कशन करना होगा, तो आप तो मुझे आई थिंक एक सर बार। आपका कोई हेल्पलाइन नंबर या ऐसा कुछ है? हाँ हाँ, मैं नंबर आप मेरा दे देता हूँ, तो ये हम वेबसाइट पे कॉल। मिल जाएगा, ये वेबसाइट पे? हाँ वेबसाइट पे मिल हाँ तो ये monishkanumber.com वेबसाइट से मोहित ले लो आप, एंड जस्ट शेयर or text all your problem that you have, and then you will get the answer over there, because your this thing requires a very customized approach, correct? And Yes, that yes, he will give you over I there. agree. Thank you Yeah, so much, sir. I will talk to you, yeah. hang up to you with this. Thank you. Yes, Anis. Yes, Anis, I'm not able to hear you. Sorry, not able to hear you. आपका जो भी रहेगा, हमारे आप तो हमारे स्टूडेंट हो, चैट बॉक्स में लिख देना, वी विल देन get in touch, we'll connect you with Monish sir, not a problem. Yes, Mr. Rahul Modi. Yes sir. Yes. Sir, I want to ask to Monish sir that कि सर मैंने ग्रुप 1 अभी तक टारगेट कर रहा हूँ, मेरा नवंबर 22 अटेम्प्ट है। मैं ग्रुप 1 अभी तक टारगेट कर रहा हूँ और ग्रुप 2 के कुछ सब्जेक्ट लेने की सोच रहा हूँ, तो मैं क्या SCMP ले सकता हूँ उसमें? अभी आप नवंबर 22 है आपका राहुल? यस सर। और आप ग्रुप 1 टारगेट कर रहे हो? अभी तक तो मैं ग्रुप 1 ही टारगेट कर रहा हूँ, बिकॉज तो मेरे बेटा क्लासेस नवंबर नहीं 22 बहुत टाइम है, सुनो मेरी बात सुनो, नवंबर Yes, sir. 22 को बहुत टाइम है। आप एक काम करो, ग्रुप 1 अच्छे से प्रिपेयर करो, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। Yes, DT sir. IDT मैं समझ सकता हूँ कि आपका प्रिपेयर नहीं हो सकता, करेक्ट? Okay. बिकॉज उसके लिए आपके पास बहुत कम टाइम है। तो DT Yes, IDT sir. आप मई 23 में टारगेट करो, करेक्ट? Yes, sir. Yes. बिकॉज वो क्या हो जाता है फिर, आप वो अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है, Yes, फाइनेंस yes, एक्ट चेंज हो yes, जाता है। yes, पर yes. SCMP में आप एग्जामिशन 100% टारगेट कर सकते हो। तो आप 5 पेपर का प्रेशर लेके चलो, आप 4 पेपर का प्रेशर लेके मत चलो। नहीं, मैंने इसीलिए मैं वही पूछना चाह रहा था Yes. कि मैं सिर्फ ग्रुप तो 1 मोनिश नहीं सर करना क्या चाहता ये हूँ। अभी भी अगर ग्रुप 1 टारगेट कर रहे हैं तो 4 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के और एक SCMP में एग्जामिशन टारगेट कर सकते हैं अभी से?
सर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन टारगेट, एक इलेक्टिव है, इलेक्टिव में ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती, तो आप 5 दिन भी इलेक्टिव का प्रिपरेशन करेंगे तो इलेक्टिव हो जाएगा और साथ में SCMP टारगेट कर सकते हैं. So yes, so Rahul, you can go for his SCMP lectures. All right, you can invite from our app also, and you can target it. You can target it. आप 100% एग्जामिनेशन तो लेके आना ही आना है ग्रुप 2. बिल्कुल सर. एंड सर मैं सर एक चीज पूछना चाहता हूँ सर कि मेरा कॉस्टिंग में सर है ना प्रैक्टिकल अच्छा है, तो इसमें सर अभी जो नया कोर्स है आई एक्चुअली डोंट नो, आई शुड हैव बीन बट आई डोंट नो सर, अभी जो है वो मोस्टली प्रैक्टिकल पे फोकस नहीं है, मुझे ये पता चला है. अभी आपने देखा ना पूरा सेशन देखा ना आपने? यस सर. करेक्ट. तो दैट्स व्हाई कि मैनेजमेंट बेस्ड है, राइट? ओके. तो वो आपको वही, जब मोनिश सर को इतना क्लियरली आइडिया है तो ऑब्वियसली उनके लेक्चर्स के आवर्स एलोकेशन में भी वो देखने मिलेगा. और इनका बेस्ट बात ये है कि ये आपके 250 घंटे यूज नहीं कर लेंगे. करेक्ट. ओके. तो आई थिंक सर यू हैव अ वेरी कॉम्पैक्ट कोर्स. ये तो मैं बताना ही रह गया बच्चों को. अ वेरी कॉम्पैक्ट कोर्स ऑफ 150 आवर्स वेयर ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूडेड. करेक्ट. बिकॉज अगर आप इनका लेक्चर भी देखो ना, डेमो लेक्चर मेरे ऐप पे भी अपलोडेड है, तो आपको क्लियरली पता चलेगा 1 मिनट का भी टाइम पास नहीं है, पूरा का पूरा कंटेंट ही है उसमें. तो वैसे 150 आवर्स का एक मिनट उन्होंने यूज किया है, और इन्होंने खुद बैठ के वीडियोस को एडिट इस तरीके से किया है कि कोई भी टाइम पास ना रहे, या थोड़ा गैप आता है तो वो गैप भी उन्होंने निकाल दिया है. तो इतना क्रिस्प वीडियोस है दैट इट इज प्योर गोल्ड कंटेंट. ऑलराइट. एंड नो अदर टाइम पास. सो आपका वो टाइम भी यूज हो जाएगा. करेक्ट सर, मोनिश सर? हाँ. यस. ओके. सो राहुल, आई थिंक दैट इज डन. यस. हर्ष भोला. Hello, hi sir, this is Harsh Bhola here. Yes, tell me. Sir, actually I'm a November 23 attempt CA student. Sir, my question is like, what should be an ideal time to subscribe the course for CA November 23 SCMP अगर start करना है तो? Like actually I have completed with SCMP, but the problem is the lectures for which I subscribed, actually I didn't get the conceptual clarity. Correct. So I think I want to. Yes, understood. हर्ष बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. नवंबर 23 स्टूडेंट्स, देखो नवंबर 23 ऑब्वियसली थोड़ा थियरी लेट टारगेट करोगे आप. करेक्ट. Exactly. And yes, please continue. Sorry. So basically, sir, if it is like, sir, if I subscribe the lectures in a month, so it will be done in next 2-3 months. So, but my attempt is November 23. So, is it fine कि मैं अभी lectures purchase करके theory देख भी लूँ? So, like what November 23 तक will it be like recollect होगा, या like what can be an ideal time कि आपके lectures subscribe करने चाहिए? Like even if I'm going for. Yes, पॉइंट नंबर 1, जो सब्जेक्ट्स के अंदर ज्यादा अमेंडमेंट्स आते हैं ना, वो सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी एंड में रखने होंगे. अदरवाइज कितने ज्यादा अमेंडमेंट्स हो जाएंगे वो आप कवर नहीं कर पाएंगे. और सेकंड बात आती है SCMP की. SCMP के अंदर अमेंडमेंट्स नहीं आते. SCMP के अंदर एक प्रॉब्लम होगा, वो है रिटेंशन का. तो रिटेंशन का प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए 2 चीज है. एक तो मेरे रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है YouTube पे. करेक्ट. सो ही हैज ऑलरेडी थॉट अबाउट इट एंड दैट इज व्हाई ही हैज गिवन रिवीजन वीडियोस. करेक्ट. हाँ, तो वो एक रिवीजन वीडियोस की आप हेल्प ले सकते हैं. कॉन्सेप्ट नोट्स आप कंटिन्यूअसली रिवाइज कर सकते हैं. तो वो रिटेंशन का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा. वो 100% वो मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ, अगर आपने रिवीजन वीडियोस अच्छे से फॉलो किए हैं एंड आपने कॉन्सेप्ट नोट्स को एक बार अच्छे से गो थ्रू किया है. और कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर सर टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर लेस देन 100. तो 100 पेज को रिटेन करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं होता. अगर रिटेन नहीं भी हुआ तो मान लो 2-3 महीने बाद आपने फ्रेश स्टार्ट किया तो वहां पे भी 100 पेज को रिटेन करना इतना टेक्निकल टास्क नहीं है. करेक्ट. In comparison to other subjects, ये retention हो सकता है. Correct. Okay. Yes, Anis. We have last 7 minutes or so for the doubts. Yes. Anis. Am I audible now? Yes, very much audible. So मेरे 3 questions थे. First, small question. सेशन के पार्ट 1 में जब आप वो टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे, बजटरी कंट्रोल टॉपिक में, वहां पे यू हैड क्लासिफाइड इट एज अ थ्योरेटिकल टॉपिक. सो वो प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है कि प्रैक्टिकल? 100% थ्योरी. इंटरमीडिएट पे 100% प्रैक्टिकल था, यहाँ पे 100% थियोरेटिकल है. Okay, because it is a bit different from the classes which I had taken, so that was a confusion for me. एक भी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है कैलकुलेशन बेस्ड. पूरा का पूरा बजटरी कंट्रोल थियोरेटिकल है. ओके. मेरा सेकंड क्वेश्चन था, आपने जब बोला दैट मॉड्यूल के इसमें फॉर एग्जांपल एक कंसेप्ट के लिए एक पैराग्राफ है और उसमें आपने क्वेश्चन बैंक से कुछ एडिशन किया है, तो वो क्वेश्चन बैंक का सोर्स क्या है? मतलब इज इट एन एडिशनल क्वेश्चन बैंक ऑफ इंस्टीट्यूट, या फिर आप वो केस स्टडी डाइजेस्ट का बोल रहे हो? इंस्टीट्यूट के जितने भी रिसोर्सेज है ना, सारे के सारे रिसोर्सेज. May 18 से न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ था. May 18 से लेके अभी तक इंस्टीट्यूट ने जितने भी रिसोर्सेज दिए ना, सारे रिसोर्सेज क्वेश्चन बैंक के अंदर है.
केस स्टडी डाइजेस्ट, इंक्लूडिंग केस स्टडी डाइजेस्ट, तो वो सबका लर्निंग मैं बोल रहा हूँ। सो वो जो भी आपने एडिशनल इंक्लूड किया है कॉन्सेप्ट में, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट मॉड्यूल क्वेश्चंस प्लस all the question papers plus the case study digest as well. Anis, all the resources of the ICAI. All right. Okay. Third question. My third question was with respect to the case study digest itself. Like, does it require any separate preparation? क्योंकि उसमें 3 टाइप के उन्होंने questions ऐड किए थे, SABQ, case study and case scenarios. So अगर हमने मॉड्यूल प्लस वो क्वेश्चन बैंक के जो एडिशनल पॉइंट से प्रिपेयर कर लिया, सो दैट कवर्स एवरीथिंग ऑफ द CSD, या फिर उसके लिए हमको एडिशनली प्रिपेयर करना पड़ता है? एडिशनली प्रिपेयर मतलब CSD के क्वेश्चंस आपको रेफर करने होंगे, कॉन्सेप्ट वाइज आपको एडिशनली कुछ नहीं देखना, पर क्वेश्चंस तो डेफिनेटली रेफर करने होंगे। ओके, थैंक यू। Yes, Mohit Panchal. Good afternoon, sir. Yes. So, sir, my doubt was, so I'm fortunate enough that I'm a student of Pragnesh sir as well as Monish sir now. Great, sir, actually I had the doubt. I'm a November 23 student. So, sir, I am going through Monish sir's lecture currently. So, sir, मुझे ये डाउट है कि रिटर्न प्रैक्टिस जो है मुझे क्वेश्चंस की, जैसे क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन सॉल्व करते तो मुझे रिटर्न प्रैक्टिस सिर्फ A और B कैटेगरी क्वेश्चंस की करनी है, या वो कैसे अप्रोच करना है उसको? देखो, नवंबर 23 अटेम्प्ट है, वैसे भी आपके पास टाइम है। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो वहां पे A और B कैटेगरी फोकस करो ना। और क्वेश्चन क्लास के अंदर तो मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, क्लास के अंदर मैंने C कैटेगरी भी सोल्व करवाए और A और B कैटेगरी भी सोल्व करवाए। C कैटेगरी आपने क्लास के अंदर मेरे साथ सोल्व कर लिया होगा, उसके बाद आपको एक बार 0 से देखना है वो क्वेश्चन, नवंबर 23 में अटेम्प्ट, तो 0 से वो क्वेश्चन सोल्व कर लो, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो उसको C कैटेगरी मार्क कर लो, उसके बाद फ्यूचर में मत देखना। पर क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये क्वेश्चन को मैं नहीं भी देखूंगा तो भी कॉन्फिडेंस है। ओके सर, राइट। और सर मुझे दूसरा डाउट ये था कि आइडियली मेरा पोर्शन सारे सब्जेक्ट्स का कौन से मंथ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? इफ आई एम नवंबर 23 मई 23 में भी मोनिश सर मई या जून तक लग रहा है कि वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। आप टारगेट लेके चलोगे और मई 23 तक खत्म भी कर दोगे तो भी क्वालिटी अगर मतलब कैसे कितने अच्छे से पढ़ाई की है, फर्स्ट स्टडी कितना अच्छे से किया है, दैट डिपेंड्स, बट आई थिंक जून 23 शुड बी द डेडलाइन फॉर हिम, नहीं 30 जून 23। अभी टाइम है तो जून 23 जुलाई 23 भी आप कर लीजिए। करेक्ट। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। यस सिद्धि। हेलो सर। यस। मेरा ग्रुप 2 इंटर सीए का पेंडिंग है, लेकिन मेरा मई 23 में फर्स्ट अटेम्प्ट है सीए फाइनल का। करेक्ट। तो मैं मई 23 में ग्रुप 1 ही टारगेट कर रही हूँ, लेकिन आई थिंक अगर मैं मई 23 के बाद ग्रुप 2 का प्रिपरेशन चालू करती हूँ फाइनल का तो वो लेट हो जाएगा। एक मिनट। पहली बात तो मई 23 में आप जो ग्रुप 1 टारगेट कर रहे हो दैट इज रॉन्ग। करेक्ट। सो आपको ग्रुप 1 से ग्रुप 1 प्लस कुछ टारगेट करना चाहिए। इवन दो योर ग्रुप 2 इंटर सीए इज पेंडिंग, दैट यू विल फिनिश ऑफ, डोंट वरी, but you should target something more. So first step is finish off your group 2 inter CA, and after that do get in touch with us and we will let you know based upon your time availability that how much you can go ahead. You know, Monish Kanabar sir is not only for SCMP, you can take guidance also from him, as you know you can take guidance from me also, so both of us can act as mentor also, don't worry about it. But पहले आप जो step wise है वो खत्म करो, let us finish the inter CA group 2 and then you go proceed to other subjects, but I think you should go for something more in May 23 and not only one group. Okay sir. Right. Thank you. Yeah. Yes, only SCMP doubts here. Yes, Gaurav. सर मेरे को ये डाउट था, जैसे मॉड्यूल में कुछ आंसर 2 या 3 पेज तक चले जाते हैं, तो उसको कैसे रिटेन करें या शॉर्ट करें, तो उसको कैसे हम प्रेजेंट करें आंसर? उसको प्रेजेंटेशन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, आपको पता है कि क्या लिखना है ना, उसके बाद प्रेजेंटेशन तो आप कर दोगे। सेकंड, 2-3 पेज का आंसर रिटर्न कैसे करना है, तो 2-3 पेज का आंसर कोई रिटर्न नहीं कर पाता। इंस्टीट्यूट क्या चीज एक्सपेक्ट कर रही है, इंस्टीट्यूट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप टेक्निकल लैंग्वेज लिख के आओ, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज का फ्लो रखे एंड यू नो कंसेप्चुअली पूरा आंसर प्रेजेंट कर पाए विद सम टेक्निकल वर्ड्स। करेक्ट। और टेक्निकल लैंग्वेज आपको क्या है वो कैसे पता चलेगी, तो आप मेरी कॉन्सेप्ट नोट्स है वो एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर जितने टेक्निकल वर्ड्स याद रखने की जरूरत है ना, सारे टेक्निकल वर्ड्स कवर्ड है, तो 100 पेज जितने टेक्निकल वर्ड्स है वो आपको मेमोराइज करने हैं, उसके बेसिस पे आपको अपनी लैंग्वेज में भी आंसर लिख सकते हैं। सर तो अगर कीवर्ड्स लिख दे और ज्यादा लंबा भी नहीं लिखे तो भी चलेगा? हाँ, क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी से ज्यादा।
Okay, sir. Thank you so much. All right. So that's it, Monish sir. Thank you so much. Thank you, everyone. And I hope that you like this particular session. All right. And this has been amazing session. Thank you, Monish sir, for this. Yes. Yes, sir. Chaliye. Bye. Take care. All the best. He's always there for guidance in SCMP, whether you subscribe for his courses or not, but his guidance is always available. Thank you so much. Thank you. Yes, you can subscribe for his lectures on our app. Also on our app, you will find some incentives, obviously, to subscribe for the lectures. Yes, Monish sir has been very grateful for that. Thank you so much. Thank you.